Morning dear student, welcome in OCM class of 12th standard. You all have been know that OCM subject has been changed our academic year 2020 and 21. But don't worry about this and don't panic it. I will provide you complete information about OCM subject, which chapter will be coming in your exam. So let us start. Chapter number in OCM subject there is 8 chapter, which is Principle of Management, Functions of Management, Entrepreneurship and Development, Business Service, Emerging Mode of the Business, Social Responsibility of Business, Consumer Protections and Marketing. So guys, please I request you, whatever I will teach you or write down, please note it because it benefits for you. And this is the 8th chapter will be coming in your exam. So today we are starting with the chapter number 1, which is Principle of Management. First of all, we decode the word principle and management. Please grab the word of. What it mean by principle and management? Let us take an example. In my firm, there is Mr. A and Mr. B. Mr. A is HR department and Mr. B is finance department. Mr. A is very eco-friendly or say this friendly behavior because of friendly behavior, and Mr. B is very rude, and Mr. A employees behavior is very friendly toward their employees, and Mr. B is very rude toward their employee. But Mr. A's rules and regulation are so linear that the employees, whenever they do the work, they don't achieve the goal. Even the Mr. Employee A just motivate towards their goals, but don't say anything about this. But Mr. B belongs to army family. Because of army family, he is very punctual about the time and their works. Whatever task or say goal has been assigned by the employees, they want the Mr. B wants at on the time. So इससे हमें पता चलता है, पूरे एक एग्जाम्पल से तुमको पता चलता है मिस्टर ए मिस्टर बी दोनों का एक बिहेवियर और एक उनके रूल्स बोलो, रेगुलेशन कहो या प्रिंसिपल कहो, दोनों के दोनों अलग थे. बिकॉज ऑफ दोनों के डिफरेंट होने की वजह से मिस्टर ए के एम्प्लॉयज अलग थे, मिस्टर बी के एम्प्लॉयज अलग थे. बिकॉज ऑफ दिस जो इनके फर्म्स में डिस्प्यूट्स होता था, बिकॉज ऑफ दिस डिस्प्यूट्स जो एम्प्लॉयज के टूवर्ड्स होता था, जिसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट आया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन. इसलिए ये कॉन्सेप्ट आया कि कोई भी डिस्प्यूट्स नहीं हो, स्मूथ फंक्शनिंग होने के लिए, कि चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस हो, नॉन बिजनेस हो, कोई भी लार्ज स्केल बिजनेस हो, स्मॉल स्केल बिजनेस हो, तो स्मूथ फंक्शनिंग करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है. द वर्ड मैनेजमेंट वर्ड तुमने कब हमेशा से सुनते आए हो, चाहे वो बिजनेस फर्म्स हो, नॉन बिजनेस हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो, लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो, या इवन एजुकेशन सिस्टम हो, even the society, everything depends upon the management. The managers are responsibility to manage the business according to their head of the department and superior has to say. So this word is the principle of management. In this chapter today we study only the subject meaning and definition and nature and features of the principle of management. You all understand about the basic concept about principle of management, because basic must have to clear about this subject, because of it is very interesting chapter and easy toward the exam. You will score much marks in this chapter. So let us start. Meaning, principle is defined as a fundamental truth or the propositions that serves as the foundation for a system of belief or the behavior of for a chain of reasoning. Because of this example,
you can understand the define which I have saved. This is the define in your textbook and it is very important to write it. And management of principle are formed to guide and influence the behavior of employee. मैनेजमेंट, हमारे फॉर्म्स में जितने भी मैनेजमेंट होते हैं या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है, हम लोग एक एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं. अगर हमारा टास्क टाइम पे होगा तो हम अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं. इसलिए ये अडॉप्ट हुआ है, ये हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट किए हैं. इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ नीड. दिस प्रिंसिपल फोकस ऑन बेस्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन. अगर बेस्ट प्रिंसिपल, जो भी मैनेजमेंट तुम्हारा बेस्ट रहेगा तो कोऑर्डिनेशन, जैसे फॉर एग्जांपल चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन, मैनेजर, डिप्यूटी मैनेजर, there is a chain between the organization which is linked between them. If the chairman says anything about the deputy chairman instruct or guide the manager implement to the deputy manager, and deputy manager are responsibility to say or guides the employee. This is the chain in the business organization. So because of principle of management, coordination between superior, subordinates and member. This is the organization system which are follow in the organization. Start. Features. This all belongs to meaning and definition which we have completed. Please note down this is very important. Now feature we have to do. This is the features and nature, one and the same. The features and natures of the principle of management. There is total 7 features which is coming in your exam for 5 marks, Understand? First feature is universally applicable. Second, journal guidelines. Principles are formed by practice and experiment. Flexibility, behaviorally in nature, causes and effects of relationship. All principles are of the equal importance. So, let us start first feature. Universally applicable. Universally in nature, applied all the types of organization, business, non-business, large scale operation and small scale operation. Let us take an example. अगर हम लोग कोई भी मैनेजमेंट हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो या बिजनेस ना हो, नॉन बिजनेस, तो भी वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई होगा. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई होगा, इसलिए उसको यूनिवर्सली एप्लीकेबल कहा गया है. यूनिवर्सल इन नेचर, अप्लाइड ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, नॉन बिजनेस, लार्ज स्केल ऑपरेशन, स्मॉल स्केल ऑपरेशन. ओके. सेकेंड, जर्नल गाइडलाइंस. अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ने एक जर्नल गाइडलाइंस दिया है. एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ने क्या दिया है? जर्नल गाइडलाइंस दिया है एक ऑर्गेनाइजेशन को कि एक कोई भी सिचुएशन तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसे कैसे सॉल्व किया जाए, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ने एक जर्नल गाइडलाइंस दिया है. जर्नल गाइडलाइंस इन टैकलिंग द ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन एज वेल एज सॉल्विंग द problems means that कि universally applicable है first. Second, general guidelines. It means कि चाहे वो कोई भी business हो, कोई problem arise हो रहा है, situation is arises in your firms or organization, there is a general guidelines to solve it. Okay. Then third is principle are formed by practice and experiment. It means develop gradually with the through research work, systematic observation and experiment are conducted before the implementing them. अभी प्रिंसिपल फॉर एग्जांपल, अभी एक स्कूल है जिसमें टीचर्स हैं. अगर वो टीचर्स क्वालिफाइड नहीं है, बेस्ट क्वालिफाइड नहीं है, उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है, उन्होंने फॉर एग्जांपल वो टीचर्स हैं और उन्होंने टीचर्स है स्कूल टीचर्स क्वालिफाइड नहीं है, मीन्स डिसक्वालिफाइड है, तो वो क्या अगर अपनी क्लास को मैनेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कहो, दे विल एबल टू मैनेज द फर्म और या स्कूल और एजुकेशन सिस्टम? नो. सो हमेशा चाहे वो बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, मैनेजर शुड बी अ क्वालिफाइड पर्सन और प्रैक्टिस और मीन्स एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए. एक्सपीरियंस एटलीस्ट, अगर एक्सपीरियंस रहेगा तो फर्म ज़्यादा अचीव कर सकता है अपने टारगेट को.
तो यही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक नेचर कहना चाहता है, फीचर कहना चाहता है कि प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। कोई भी हम लोग कोई भी चीज़ लो या वस्तु लो, जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते उस पर, तब तक हमारा सक्सेसफुल नहीं होता। तो यही कहता है कि डेवलप ग्रेजुअली बट थ्रू द रिसर्च वर्क, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट आर कंडक्ट बिफोर इम्प्लीमेंटिंग। अगर ये सब एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस, ये फॉर्म पहले होता है, क्यों? हम लोग को अगर फॉर्म्स में ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट करना है, मतलब उससे हम लोग को फिर से उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो हम लोग को ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। दैट इज थर्ड नेचर्स एंड फीचर्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एंड फोर्थ इज फ्लेक्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। They can change or modify according to requirement or situation. It means प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारे फर्म में अपने सिचुएशन के हिसाब से वर्क करते हैं, अपने सिचुएशन के हिसाब से वर्क करेंगे। अगर सिचुएशन बहुत ड्रास्टिक है तो हम कोई भी सिचुएशन या डिसीजन लेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड द रिक्वायरमेंट। इट इज बिकॉज ऑफ दिस इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। एंड आते हैं फिफ्थ पे, बिहेवियरल इन नेचर। इट मीन्स मैनेजमेंट। अभी मैनेजमेंट क्या है? अगर हम मैनेजमेंट अकेले तो नहीं कर सकते, अगर बिजनेस भी चलाना है, हमारे फर्म भी चलाना है, कोई फर्म चलाना है, तो क्या अकेले एक बंदा, वन पर्सन बिजनेस कर सकता है क्या? नहीं। उसको मैनेज करने के लिए हम लोग को कुछ लोग चाहिए, वी रिक्वायर समवन। तो इट्स मेंटेन या इट्स मीन दैट मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। व्हाट इज ग्रुप एक्टिविटी? A group of human being, just principal control of the group of person direct them to achieve their target. अब ग्रुप एक्टिविटी है, उनको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डायरेक्ट करता है कि कैसे अचीव किया जाए गोल को। अंडरस्टैंड? रिटर्न, फिर से रिपीट। मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी, अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग, दिस प्रिंसिपल कंट्रोल which control a group of person, direct them to achieve their target. Understand? To achieve their target. This is the fifth feature and nature of principle of management. Next, causes, effects and relationship. It means principle of management, full form of POM is principle of management. अगर हम मैनेजमेंट करते हैं, कोई भी मैनेजमेंट करने के लिए हमारा रिलेशन कंज्यूमर से, चेयरपर्सन से, सबऑर्डिनेटर से, एम्प्लॉय से, हमारा रिलेशनशिप एक अच्छा होना चाहिए, हमारा लिंकअप अच्छा होना चाहिए कि कोई भी डिसीजन हम लोग फटाक से ले लें। या हमारा एम्प्लॉयज़ के टूवर्ड्स रिलेशन अच्छा होगा तो वो एम्प्लॉयज़ अपना इफ़िशिएंसी, इंक्रीज इन इफ़िशिएंसी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वर्किंग इन द फर्म्स और अगर हम लोग उनको पेमेंट, गुड पेमेंट देंगे, गुड पेमेंट कहो या इंसेंटिव्स कहो, तो उनका एफिशिएंसी इंक्रीज होगा, दे मोटिवेट टूवर्ड्स देयर वर्क। तो ये क्या इफेक्ट, कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अगर हम लोग अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे अपने एम्प्लॉय से, तो वो हमारा जो भी टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ कॉजेज एंड इफेक्ट। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज अ बेस ऑफ टेकिंग डिसीजन। चाहे वो डिसीजन कैसा भी हो, ड्रास्टिक सिचुएशन हो, अच्छा सिचुएशन हो, एकदम प्रॉब्लम, अगर हम लोग को सॉल्विंग प्रॉब्लम भी चाहिए, तो भी हम लोग का कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, नॉन बिजनेस हो, सोसाइटी हो, या फिर लार्ज स्केल ऑपरेशन हो या स्मॉल स्केल ऑपरेशन। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट इज द ऑल प्रिंसिपल ऑफ द इक्वल इम्पॉर्टेंस। चाहे वो प्रिंसिपल एक छोटा हो या बड़ा हो, वो छोटे मतलब फॉर एग्जांपल एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वो प्रिंसिपल हम लोग अडॉप्ट किए, अब वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में भी अडॉप्ट किया गया, बट देयर आर इक्वल इम्पॉर्टेंस, उनको इक्वल इम्पॉर्टेंस बिकॉज एक के बाद एक लिंकअप है। सो आर टू प्रैक्टिस साइमल्टेनियस टू गेट बेस्ट रिजल्ट। अगर हमको बेस्ट रिजल्ट हमारे फर्म में चाहिए, हमको अपने फर्म में एक बेस्ट रिजल्ट चाहिए, हमको मार्केट में इन्फ्लुएंस करना है, हमारे मार्केट में मोनोपोली या हमारे मार्केट में एक गुडविल क्रिएट करना है, तो सारे काम, सारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज इक्वल इम्पॉर्टेंस। सो आर टू बी अ प्रैक्टिस साइमल्टेनियस टू गेट बेस्ट रिजल्ट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द प्रिंसिपल ऑफ social science. I hope
Dear student, you understand all about the features and the nature of principle of management. Once again, I read all the features. Universally applicable journal guidelines principle are formed by practice and experiment. Flexibility, behavioral in nature, causes and effect of relationship. All the principles are of equal importance. So dear student, this is very important. This will be guaranteed you will be coming in your exam at 5 marks or 8 marks in your paper. So friends, you have to write at least 5 to 7 points. It is very interesting and very easy. Believe me, I will complete this topic of meaning and definition and the features of the and natures of the principle of management. अभी हमारा पार्ट 1 है और पार्ट 2 में हम लोग कुछ आगे पढ़ेंगे 14 प्रिंसिपल हेनरी फॉल। अगर ये वीडियो अभी मैं कंप्लीट करना चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत।